क्यों होंगे कैनेडा के स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज, की कारण आ? नाल दी नाल गलबात करांगे कि इहो ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਕਾਰਨ 5 ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਬਾਸ ਅਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि कनाडा ਦਾ स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज क्यों ਹੁੰਦਾ? जी थैंक यू वेरी मच सुखी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने टॉपिक, अच्छा टॉपिक तो नहीं है मगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, क्योंकि कोई बंदा भी रिफ्यूजल से फाइल तो लाना नहीं। हाँ जी हाँ जी क्या जैसे आपने कहा कि रिफ्यूजल होते हैं, उसकी कॉमन रीजन है कुछ। सबसे जो मेन मुद्दे पे आते हैं, सबसे बड़ी जो वजह है, हाँ जी, मोस्ट जो रीजन मैंने जो नोट की है हाँ जी, वो है कि बच्चों ने अपना जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किया होता, ओके जी, ओके, रॉन्ग कोर्स। हाँ जी हाँ जी, एक बच्चे ने मान के चलो +2 की थी, ओके जी, 42% मार्क्स था, एक कंप्यूटर का कोर्स ले लिया, कंप्यूटर टेक्नीशियन था, कितों वीजा लगूगा। यानी कि तो जिस ये एक मेन रीजन है, नंबर 1। अच्छा सर जी, ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਸੋ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, SDS ਤੇ ਨਾਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सबसे तो हाई रिफ्यूजल होती है वो मास्टर डिग्री होल्डर की होती है। ओके जी, ओके। मास्टर डिग्री कर ली, उसके बाद देखो ना कैरियर की आपकी प्रोग्रेशन होती है, आपकी एकेडमिक प्रोग्रेशन है। +2 की था, बैचलर की थी, मास्टर की था, फिर MPhil होगा, फिर PhD होगा, यही है ना। तो सबसे ज्यादा जो कनाडा में जो रिफ्यूजल आते हैं, आई वुड से 70-80% वो मास्टर डिग्री होल्डर के होते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर ली हुई पहले की थी। नंबर 1 वो कारण बात दसांगा वजह की, नंबर 1। नंबर 2, जेरे बच्चे बैचलर डिग्री होल्डर है, हाँ जी, उन्होंने गैप बहुत ज्यादा है। ओके जी, काफी हाई रिफ्यूजल है, और सबसे कम रिफ्यूजल है +2 वालों की। ओके जी, ओके। 10% रिफ्यूज +2 के होते हैं वो भी, हाँ जी, पर कम होते हैं। मगर सबसे ज्यादा जो है वो मास्टर, फिर उसके बाद बैचलर, और सबसे कम वीजा रिफ्यूज होते हैं +2 वाले। यह जनरल नंबर है, देता है। ओके सर जी, 5 ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ 5 ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਾਰੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ IELTS ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, PTE ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਕਿ IELTS ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 6 ਬੈਂਡ, no less than 6, ਇੱਕ 5.5 ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 5.5। ਨੰਬਰ 1 ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ +2 ਵਾਲੇ। ਨੰਬਰ 2, ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਥ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ +2 ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SDS ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ, IELTS ਕੀਤਾ 6 ਬੈਂਡ, एक 5.5 पे चलेगा। तो कोर्स सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। अब उसके बाद आ जाते हैं जी, अब बात करें एक मिनट, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਨ SDS ਫਾਈਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IELTS ਦੇ 6 ਈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। तो ये चीज मैं रिपीट कर दें, कई यार थोड़ा जहा गलत समझ लेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई SDS में मिनिमम 6 चाहिए ईच। हाँ जी, तो एक में भी कम हुआ तो वो नॉन SDS, मगर नॉन SDS में वीजे लगते हैं। ये 5.5 से वीजा रिफ्यूज नहीं होता।
अगर कोर्स रॉन्ग चूज किया, सबसे मेन कॉमन रीजन नहीं होती, सबसे कॉमन रीजन कोर्स रॉन्ग चूज कर ले बच्चे ने। तो 5.5 का इशू नहीं है, नॉन एसडीएस में फाइल अप्रूव होती है। ओके सर जी, अगला सवाल है, यानी कि तीजा रीजन दसो जिहदे नाल फाइलां स्टूडेंट वीजा दी, यानी कि कैनेडा स्टडी वीजा दी। तो दूसरी वजह ये कहा जाती है कि गैप बहुत ज्यादा। ओके जी। बैचलर किया हुआ है, 5-8 साल पहले बैचलर किया था। हाँ जी, हाँ जी। बैचलर डिग्री 10-8 साल गैप आ गया और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। देखो एसओपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके जी। ओके। इसी फाइल में खास तौर पे जो बच्चे बैचलर या मास्टर वाले, हाँ जी, एसओपी इज लाइक अ स्क्रिप्ट ऑफ अ मूवी, राइट? ओके जी। इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट। तो एसओपी तुझे एक्सप्लेन करना है कि गैप किया है, आपने गैप को कैसे कवर किया। अगर तो आप प्रॉपर जॉब चल रही है, आप प्रॉपर उसका प्रूफ लगाओ, अपॉइंटमेंट लेटर, प्रमोशन लेटर, पे स्टब, ट्रांसफर सैलरी, हर चीज जेन्युइन अगर आपकी है और आपका गैप जस्टिफाई होता है, प्लस आप एसओपी में लिखो कि मैं आप क्यों करने जा रहा हूँ स्टडी आफ्टर दिस मच गैप। तो गैप बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑफिसर समझ है कि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। एसओपी से ध्यान दो, खास तौर से वो बच्चे जिन्हों का मास्टर डिग्री है या बैचलर किया है और गैप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसओपी, ये मेरे पहला जो पॉइंट था वो कोर्स सिलेक्शन है। सेकंड एसओपी, फिर आपके ओवरऑल मार्क्स क्या हैं ये भी देखा जाता है, आपके आइल्स का क्या स्कोर है ये भी देखा जाता है। ये सारी चीजें, आपके ग्रेड क्या थे, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बनती है। फिर आप किस जगह पढ़ने जा रहे हैं, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में। अभी आजकल आपने देखा होगा इंडिया में पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से काफी रिफ्यूजल आ रहे हैं। ये ज्यादा बच्चे प्राइवेट कॉलेजों वाले हैं, मोर देन 60-70%। अब प्राइवेट कॉलेज कौन जाएगा जिन्होंने पब्लिक का मुंह नहीं लांदा। सही है, सही है, सही है। काटने 40%, 35%, 40% ग्रेड ने, वो प्राइवेट जाएंगे ना फिर। हाँ जी। फिर आंदा कि अगर पब्लिक कॉलेज नहीं गया तो प्राइवेट क्यों जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट एज ग्रेड घट से एडमिशन मिल गया, पब्लिक का एडमिशन देना नहीं। राइट, बहुत सर जी, बहुत मैं इतने रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ी गल तुसीं सही कही है, सच कहा कि पब्लिक ते प्राइवेट दे विच दिन रात का फर्क आ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पब्लिक यानी कि ज्यादा वधिया हुंदे जां प्राइवेट ज्यादा वधिया हुंदे आ। तो एजुकेशन का लेवल का बहुत सारिया चीज़ां इंपैक्ट करदियां, ठीक है, जिन्हां दे करके ये चीज़ां कंसीडर कीतियां जांदियां कि कित्थे तुहानूं 65% से एडमिशन मिलना एक कॉलेज दे विच, कित्थे तुहानूं 40, 45, 50 दे देना। तो वीजा ऑफिसर समटाइम ये चीज़ां कंसीडर करता। तो इस चीज़ को भी बचना चाहिए, थोड़ा जिहा परसेंटेज गुड होण, नाले आईएलटीएस का स्कोर भी गुड हो, चाहे पीटी की है गुड हो ओवरऑल। हाँ जी, तीजा कारण सर जी दसो भी रिफ्यूजल क्यों आती है बच्चे? एक काफी बच्चे बैकलॉग आता, बैकलॉग काफी होता बच्चों का ना। ठीक है जी, ठीक है। देखो किया कि डिग्री उसने करनी थी पास, 3 साल की डिग्री है +2 करने के बाद लगा दी 5 साल। ठीक है जी, ये भी नेगेटिव है, ऑफिसर देखता है। अच्छा, सबसे एंड पे जो है वो फाइनेंशियल है। ओके जी, ओके। फाइनेंशियल में भी वीजे होते हैं मगर कम होते हैं, मगर ये भी एक रीजन बन सकती है कि तुसी 1 साल के फंड लाते, जीआईसी लाता पहले साल का, और दूसरे साल का नहीं प्लान दिया कि कैसे मैं सर्वाइव करूंगा वहां पे जॉब के बगैर कनाडा में। तो आपने आईटीआर लगाएं, अपने एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं 6 महीने की, प्रॉपर फाइल को तगड़ा करके लगाएं, चाहे फाइल एसडीएस ही है। हालांकि एसडीएस की जरूरत नहीं है सैकेंड ईयर की फंड लगाने, मगर असं फिर भी स्टूडेंट को रिकमेंड करने कि प्लान ऑफ एक्शन दो एसओपी दे विच एक्सप्लेन करो कि दूसरे साल की स्टडी किस तरह कवर होगी। रीजन ठीक है जी। चौथा रीजन दसो जी, चौथा रीजन की है जिहदे करके एक होम टाइज का कहा जाता कि तुसीं वापस नहीं जाना, सर उसका भी थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दो। वापस जाने में तो सोशल टाइज शो करनी है आपने। देखो +2 वाले बच्चों का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तब इसका मसला नहीं होता। ये मसला आता है बच्चों का जो मेच्योर होते हैं, इनका गैप होता है। ठीक है, तो फिर आपको एसओपी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ਉਹਦੇ ਚ मेहनत करनी है, जान मारनी है एसओपी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ फाइल ਦਾ ਦਿਲ है, हार्ट है, उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन करना कि सारी सोशल टाइज ने, आप वापस आएंगे पढ़ने के बाद, आपकी स्टडी करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के अलावा। काफी लोग कनाडा पे पढ़ने के बाद इंडिया नहीं आते, वो मिडल ईस्ट चले जाते हैं, दुबई चले गए, कतर चले गए, सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए। तो ये भी आपने एसओपी में साबित करना है और क्लियर करना है ऑफिसर को कि मेरी जो ये प्रोग्राम स्टडी में पढ़ने जा रहा हूँ 3-4 साल के गैप के बाद, मेरी इसमें कैरियर में क्या प्रोग्रेशन होगी। तो खाली इंडिया में नहीं बल्कि और कंट्रियों में भी वापस आके जॉब करने जा सकता हूँ ना। कनाडा की स्टडी तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। हाँ जी, हाँ जी।
ਇਹ ਵੀ ਐਸਓਪੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾबित करना है, एक्सप्लेन करना है लॉजिकली कि मैं क्यों इतना खर्चा करके जा रहा हूँ पढ़ने कनाडा। ऑफिसर कहता है कि व्हाई यू कमिंग ऑल द वे टू कनाडा फॉर स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर व्हाट, आपको से बेनिफिट क्या हो। तो आप बेनिफिट आप जस्टिफाई करना है, रिसर्च दिखाएं, गूगल सर्च करें, डिफरेंट आर्टिकल दिखाएं ऑफिसर को कि मेरा ये प्रोग्राम है, ये पढ़ने के बाद इस इंडस्ट्री में मेरी ग्रोथ होगी। सारी चीजें आपने एसओपी में शो करनी है। बड़ा बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी की वजह से रिफ्यूज करता है क्योंकि ऑफिसर कहता है कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड क्योंकि आपने मुझे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, तारा पर्पस की है आंदा इस टाइम से। तो फिफ्थ पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਭੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੀਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਾਈਲ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਲੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ IRCC ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੰਬਰੇਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ जी। जी ये मार्केट में काफी सर्कुलेशन है, अफवाह ने, र्यूमर है, मिथ है। ऑफिसर की जी जॉब है ना, वो क्लाइंट की फाइल वेख के ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ, ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਬਲ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਨੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਾਫੀ AAP ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, AAP ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ज्यादा नहीं मगर कुछ बच्चे आई हैं रिफ्यूज। तो अब आप कह दीजिए कि अब सबको, या तो सबको रिफ्यूज करते हैं AAP वालों को, फिर ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात गलत है। मार्केट में एजेंट बादशाह फैला रहे हैं कि जी क्योंकि वो कैनेडा ने फाइल बैकलॉग इकट्ठा हो गया है और रिफ्यूज करके बैकलॉग इकट्ठा क्लियर नहीं कर दे, ये गलत बात है। ज्यादा बच्चे और रिफ्यूजल आ रहे जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज पाई फाइल, नंबर 1। नंबर 2 वो बच्चे जिन्हें 5.5 बैंड आया, यह भी रीजन है कॉमन आजकल, जिन्हें ज्यादा रिफ्यूज हो रही है। जो अच्छा प्रोफाइल है वो चीज रिफ्यूज हो सकती है, मैं नहीं कहता कि 100% नहीं होती, मगर बहुत घट चांस है। तारा प्रोफाइल अच्छा है, तारे तुसी फाइल ते मेहनत की, प्रॉपर अच्छा कोर्स सेलेक्ट किया है, अच्छा कॉलेज किया है, आपने प्रॉपर फाइल, आपका आइल्स स्कोर ठीक है, ग्रेड आपके अच्छे हैं, गैप नहीं है, कोई SOP अच्छी जस्टिफाइबल है, तो क्यों रिफ्यूज करेगा जी? ऐसा नहीं, क्योंकि 80% वीजे अप्रूव होते हैं इंडिया से, 90% क्यों होते हैं? क्योंकि वो देने के लिए बैठे हुए ना। अनलेस कि आपकी फाइल बिल्कुल दागी है तो रिफ्यूज ही होना। फिर प्राइवेट कॉलेज लग गया 40% मार्क्स ने ताड़े, आइल 5.5 लगा आइल्स, तो रिफ्यूज नहीं होना। ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਹਿਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, तो ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਾ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ? देखो मैं तो इको गल कहांगा कि जिहदा रिफ्यूजल आ जाए बच्चे का, ਉਹਨੂੰ पैनिक नहीं करना चाहिए। और रिफ्यूजल ਨੂੰ पहले समझन कि क्यों रिफ्यूज होया, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ करो, एवैल्यूएट करो।
देखो 3 चीजें होती हैं। अगर तो फाइल तुहानू लग रही है कि रिफ्यूजल यानी जस्टिफाइबल नहीं है, तो आप उसको अप्लाई कर दो रिकंसिडरेशन के लिए, अप्लाई फॉर रिकंसिडरेशन। वो नई फाइल नहीं होती, सिर्फ रिकंसिडरेशन है। वो जाती है IPM, इंग्लिश इमिग्रेशन प्रोग्राम मैनेजर को जाती है, जो एम्बेसी का हेड होता है। सर जी ये तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक एडा वड्डा नाम लेता तुसीं, कईयां नूं ते हुणे सुन के जानी कि नाल दी नाल गश पै जानी है, ये भी इदां दा बंदा भी हुंदा जिहड़ा इन्हां नूं किवें पता। तो माड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दिओ, क्योंकि ये भी बहुत वड्डी गल आपां इहदे इस टॉपिक ते भी बनाना, बट आ रिकंसिडर वाली गल पूरी क्लीयर कर। देखिए अरे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ बैठा है ना, ਉਹਦੀ भी तो पकड़ होंदी है ना, किन्ने भी तो प्रूव कीते, किन्ने रिफ्यूज कीते, क्यों करी जाना रिफ्यूज, क्यों प्रूव करी जाना है, उस सब उन्होंने चेक होता है, ऑडिट होता है। उनके होता है प्रोग्राम मैनेजर कहते हैं, जो पूरे जो एम्बेसी होती है उसका हेड होता है, पूरे स्टाफ का वीजा ऑफिसर को वो सुपरवाइज करता है। तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ एप्लीकेशन कि भाजी तारा जो वीजा ऑफिसर है ने मेरी फाइल नजायज रिफ्यूज कर दी, उसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन। नंबर 1। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल में रिकंसिडरेशन नहीं है और रिफ्यूजल कुछ और है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जी आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल नहीं देते, या प्रूफ ऑफ GIC नहीं दिया, या आइल्स का स्कोर नहीं दिया, मगर आपने दिया है फाइल में, आपने दिया है ना, आप फाइल चाहिए, तो ये इजी टू रिफ्यूट है, इजी टू हैंडल है रिफ्यूज। आप कर दे रिकंसिडरेशन, आप अगर रिकंसिडरेशन नहीं करते तो रिप्लाई कर दें। मगर अगर आपकी फाइल में मल्टीपल रीजन है रिफ्यूजल के, मल्टीपल इशू है, फिर आप ना रिकंसिडर करो ना रिप्लाई करो, तुसी नोट मंगा लो, केप नोट GCM, ਉਹ ਨੋਟ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਲੀਆਂ ਕੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, सही गल कही आ। ठीक है जी, बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं इहदी गल क्लीयर करती। सर जी एक होर सवाल आ कि हसबैंड वाइफ इकट्ठे कैनेडा दा यानी कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट यानी कि जिहड़ी कुड़ी आ ओह आपदा कैनेडा दा स्टडी वीजा अप्लाई करे ते मुंडा कैनेडा दा स्पाउस ओपन वर्क परमिट इकट्ठे अप्लाई कर सकदे आ, की प्रोसैस आ थोड़ा जिहा ओह भी डिवाइड कर दो, दस दिओ आसान वे दे नाल। लीगली स्पीकिंग से कर सकते हो, हाँ जी, कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं कर सकते। हाँ जी, मगर प्रेफर है होंदा कि एक बंदा चला जाए पहले उठे, एक सेमेस्टर पूरा कर लवे, उससे क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने आता नहीं यहाँ पे, उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि बच्चा बोनाफाइड स्टूडेंट है, वो पढ़िया उन्हें, उसके बाद तो स्पाउस ज्यादा आइडियल तो ये होता है। ठीक है जी, ठीक है। बट सर जी थोड़ी ये भी चीज क्लीयर कर दो कि जिन्होंने रिलेशनशिप पुराने आ ब्याह सारा कुछ जेन्युइन फंड वगैरह है अप्लाई तुम कर सकते हो, ठीक है। बट सम टाइम यानी कि ये नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ां तुहानूं देखनियां पैणियां, उहदे विच काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा, ठीक है। फंड का हो गया, मैरिज बोनाफाइड हो गई, ठीक है। तुसीं इत्थे आण के सर्वाइव किवें करोगे, आपका जिहड़ा खर्चा सारा यानी कि फंड वगैरह हो गई, ठीक है। तुसीं इत्थे वर्क की करोगे, यानी कि तुसीं एक कंट्री दे विच इमिग्रेंट हो, ठीक है। तुहाडे सर्वाइव किद्दां करोगे, तुसीं आपकी लाइफ ते बर्डन नहीं बनोगे। तो ये सारियां चीज़ां किते ना किते हद तक एनालाइज कीतियां जांदियां जदों इकट्ठी एक फाइल जांदी है। सर मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता, सर तुसीं भी माड़ा जिहा इहदे विच दस दिओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया तुसीं कि मल्टीपल फैक्टर होंदे आ, एक फैक्टर नहीं है। फाइनेंशियल ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ठीक है जी, ठीक है जी, ये तो हो गया। तो नॉन SBS ਤੇ SBS ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ठीक है जी। कितना करेंगे SBS का, कितना परसेंटेज रहेगा, तो नॉन SBS का कितना? देखिए SDS तो ऑब्वियसली एक टॉप प्रायोरिटी है, वो तो उसमें हाई अप्रूवल है, और नॉन SDM में भी दो है नॉन SDS, एक तो बहुत ही लो है, एक बिल्कुल एवरेज है। एक बच्चे ने 5.5 एक वे किया है तो नॉन SDS है, मगर अच्छा स्कोर है, अगर ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं, गैप नहीं है, फाइल निकल आएगी। अगर दो में 5.5 है, वो ग्रेड भी घट ने बचे थे 40-45%, तो फिर तो रिफ्यूजल ही है। ओके जी, ओके। PTE ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨॉन SBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ PTE ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, PTE ਵਰਸਸ IELTS, ਵਿਚ ਵਨ ਬੈਟਰ ਔਰ ਈਜ਼ੀ,
ठीक है जी। तो सर जी माड़ा जिहा दस दो कि वीज़ा अप्रूवल रेट किवें आ पीटी दे उत्ते? देखिए ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफरेबली तो आइल्स है, क्योंकि आइल्स की एक क्रेडिबिलिटी है टेस्ट की, उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, इमेज बना है ना, इमेज बना हुआ ऑफिसर के माइंड में, इमेज बना हुआ है। हाँ जी। इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है अफसर के माइंड में। वो कहते यार बच्चा आइल्स नहीं कर रहा, पीटी कर रहा, क्यों आइल्स क्यों नहीं कर रहा? देखो ऑलरेडी माइंड से शक पै गया, शक आ गया दफ्तर अफसर के दिमाग च, पीटी किया तो आइडियल तो आइल्स है, मगर पीटी पे वीजे लगते, ऐसा नहीं कि लगते नहीं है, डिपेंड की पीटी स्कोर क्या है। अगर तो 60 प्लस स्कोर है, यू नो, नॉट लेस देन 60, 58 स्कोर तो चलो ठीक है, दैट्स ओके, डिपेंडिंग ऑन, मगर आइडियली आइल्स है, मगर पीटी पे भी वीजे लगते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कहता कि लगते नहीं। ठीक है जी। कि वीजे लगते वीजे आते भी आ, तो डिपेंड करता थोड़ा बैकग्राउंड की है, एजुकेशन कितना का सिलेक्ट करे। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि खाली एक चीज नहीं ना, खाली पीटी, देखो आपने आइल्स कर लिया हाँ जी। 7 बैंड के साथ, हाँ जी। मगर रॉन्ग कोर्स सेलेक्ट कर लिया, वीजा रिफ्यूज, एसडीएस फाइल है, रिफ्यूज हो गई। पीटी का किया 60, कोर्स सही सेलेक्ट कर लिया वही बच्चे ने, वीजा लग गया। तो खाली पीटी नहीं है ना भाजी, 12 मसाले की चाट बनेगी तो वीजा लगेगा, 12 मसाले की चाट। ठीक है जी, सही है, सही है। हर चीज, हर मसाला पेगा तो फिर बिरयानी बननी बनती यार मसाले पा के। ठीक है जी, ठीक है जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਮਿਲੇ ਆ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੀਸੀਆਰਪੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਸਟੈਂਡਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਫਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 2022 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, तो ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਐਲਟਸ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਟੀ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 2022 ਦੇ ਲਈ। जनवरी इनटेक देखो लैम्पटन कॉलेज काफी हद तक बंद हो गया, 80% कोर्स बंद हो गए लैम्पटन कॉलेज, वो भी असं करने डायरेक्ट साढ़े को लैम्पटन कॉलेज 3 कैंपस नहीं होते, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है जी, अच्छा कॉलेज है, मगर जनवरी इनटेक काफी हद तक बंद हो गए। कुछ प्रोग्राम खुले ने, लॉरेंस भी करने हैं, लॉरेंस भी जनवरी इनटेक बंद हो गए। उसके बाद चौथा सेल क्लियर आ गया, आपका फैंशा कॉलेज में चल रहे हैं, कोनस्टोगा में खुल गए हैं, सेंटेरियन में कुछ खुले बंद हो गए, सैनिका चल रहा है, जनवरी इनटेक चल रहा है, कैम्ब्रियन चल रहा है, कनाडोर भी खुल गए। तो कॉलेज तो काफी है, कॉलेज का इशू नहीं है, मगर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जनवरी इनटेक काफी हद तक बंद हो जा रही है, तो अगर तुम प्लस 2 कर लिया तो ਤੁਹਾਨੂੰ एडमिशन ऑफर लैटर जल्दी अप्लाई करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो मैं इनटेक आ जाएगा ਹੁਣ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, 1 to 1 ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ੂਮ 'ਚ। ਸੋ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ CIC ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, can.ca ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।